Now, because as it was discussed, we would be starting off with the new chapter today. We would start off with the new chapter today, that is the index number. The name of the chapter is index number. Now again, it's a formula based chapter. It's a formula based chapter, and in that I am guaranteeing you that you need to learn only one formula. There are around 12 to 15 formulas in the entire chapter. Index number mein there are around 12 to 15 formulas in the entire chapter, but I guarantee you need to learn only one formula. एक फॉर्मूला हमें याद कर लेना है, उस पर से we would able to make 12 to 15 formulas of the entire chapter. तो क्या एक फॉर्मूला हमारे लिए याद रखना इजी है कि डिफिकल्ट है? सर, you know the answer. It's very difficult. One formula, it will take around 1 week's time for us to remember, but we will do it. We'll do it, right? अब ये इंडेक्स नंबर का कंसेप्ट क्या है? The chapter is on what? Let's try to understand directly with the example. Let's understand the chapter of index number directly with the example. अब इसमें तुम थोड़ी हेल्प करना मेरी, ठीक है? क्योंकि you people are quite aware, you people know everything, so you need to help me out, okay? So just a second, I'll just share the screen with you. I'll just share the screen with you. Okay, now tell me one thing. The prices of petrol, the prices of petrol in the year 2015 कितने थे? Anybody give me a thumbs up. What was the price of petrol in the year 2015? सर, हम साइकिल पे थे, हमको पता ही नहीं है. हम साइकिल पे थे. हाँ हर्ष सर 60 रुपीज पकड़ के चलते हैं. चलो 60 रुपीज हम पकड़ के चल रहे हैं कि भाई 60 रुपीज होंगे सर. प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इन द ईयर 2015 वुड बी 60 रुपीज, राइट? अब 2021 आ गया है, तुमको पता ही होगा कि व्हाट इज द प्राइस. जिनका वीडियो ऑन है जरा फिंगर पे बताओ कितने रुपए हो गए हैं. फिंगर्स पे बताओ, फिंगर्स पे. कोई ऐसा बता रहा है, ईशा 6 बता रहा है. कैसे सला 6 कैसे हुआ है सर? ऑलमोस्ट, कैन आई से इन द ईयर 2021 इट हैज ऑलमोस्ट टच 100 रुपीज. 96 तो अपने बड़ौदा में चल रहा है, लेकिन तुम अगर मुंबई दिल्ली जाओगे, तो इट हैज क्रॉस्ड सेंचुरी. 100 रुपीज पार कर दिया है. क्या बैटिंग कर रहा है यार, जोरदार. ये तो अपने जो रेगुलर बैट्समैन है उनसे भी ज्यादा अच्छी बैटिंग कर रहा है. सो 100 रुपीज हो गए हैं, राइट? तो इफ आई से कि द प्राइजेस इन अ स्पैन ऑफ 6 ईयर 40 रुपीज से ये प्राइस इंक्रीज हुए हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूं. अगर मैं अभी सिर्फ एक ही आइटम को कंसीडर करूं, प्राइस ऑफ पेट्रोल, इफ आई कंसीडर ओनली वन आइटम, द प्राइसेस हैव गॉन अप in a year of 5, in a span of 5 to 6 years, it has gone up by 40-50 rupees. Now, will you all agree with me? Can I say this has happened with all the items, all the commodities? ऐसा कोई है कि भाई माल सस्ता हो गया हो? पहले हम 2015 में कुछ प्राइस पे लेते थे, या 2010 में जो लेते थे, प्राइस गिर गया हो अभी 2021 में? ऐसी कोई आइटम तुम्हें याद आ रही है? बहुत बढ़िया, नहीं है. And that is why every year the prices of the items or the prices of the commodities are increasing. Just like our share market, the prices of the shares also keep on increasing, but in share market it also happen कि it goes down. लेकिन अपना जो ये inflation है, प्राइस है जो commodities का है, it has kept on rising.
नीचे गिरा ही नहीं है। यस और नो? यस और नो? तो अब ये जो चेंज आया है प्राइसेस में, ये जो चेंज आया है प्राइस ऑफ पेट्रोल, या तो हम कोई भी दूसरी कमोडिटी ले लें, अगर हम गोल्ड का डिस्कशन करेंगे, गोल्ड के प्राइस का डिस्कशन करेंगे, तो वो भी 2015 में, वो भी 2015 में कुछ 30,000 के आसपास चल रहा था। 2021 में नाउ इट हैज बिकम अराउंड 50,000। तो इसके भाव में भी 20,000 रुपीस का इंक्रीज हो रहा है, बराबर है। अब ये जो प्राइसेस में जो ये चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, जरा ध्यान दो। द चेंज इन द प्राइसेस कैन बी कंपेयर्ड बाय टू मेथड्स। लिखो अपनी नोटबुक में जो अभी मैं लिख रहा हूं, start writing it in your notebook the way I am writing. Come on. The changes in the price, the changes in the price is of two types. सबसे पहला absolute difference, पहला है absolute difference, एंड दूसरा है relative difference. The first one is an absolute difference and the second one is a relative difference. मतलब ये जो चेंजेस हैं, जो प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं 2015 के कंपैरिजन में 2021 में, ये जो प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं वो चेंज दो किस्म के हैं। एक है एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा है रिलेटिव डिफरेंस, रिलेटिव चेंज, बराबर है। नाउ एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है ना, प्राइस में जो ये एब्सोल्यूट डिफरेंस आया, वो हम इस चैप्टर में नहीं सीखने वाले हैं, क्योंकि वो तुमको आ गया। बेटा तुम सोचो तुम कैसी स्कॉलर बैच हो, मैंने सिखाया नहीं फिर भी तुम्हें आ गया। तुम सोचो तुम कितने स्कॉलर हो। एब्सोल्यूट डिफरेंस होता क्या है जरा समझो, और तुम मुझे बताओ मैं इसमें क्या सिखाऊं तुमको, मैं क्या सिखाऊं। देखो 50,000 प्राइस था और पहले वो 30,000 था, तो हमने ये जो डिफरेंस निकाला 20,000 का, उसे हम एब्सोल्यूट डिफरेंस बोलते हैं। इन्हें આપણે શું કહીએ? एब्सोल्यूट डिफरेंस। What shall I teach you in this? You know कि जो भाव पुराने थे और अभी के जो प्राइस हैं उनका हम सीधा सब्ट्रैक्शन कर देंगे, न्यूमेरिकल डिफरेंस ढूंढ लिया, तो क्या ना से वो हो गया एब्सोल्यूट डिफरेंस। इसमें कुछ मैं बताऊं तुम्हें सिखाऊं, जरूरत है? क्या ना से तुम कोई भी प्राइसेस को ऐसे कंपेयर करके एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे व्हीट का प्राइस मान लो 50 रुपए है आज के टाइम में, आज के टाइम में ने पहले हुआ करता था 30 रुपीज, तो व्हाट्स द एब्सोल्यूट डिफरेंस? व्हाट्स द एब्सोल्यूट डिफरेंस? बेटा विराट कोहली वाला वी दिखा दो, बेटा विराट कोहली वाला वी, यो विराट कोहली वाला 20 रुपीज का डिफरेंस है ना। मतलब तुम लोगों को एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है समझ में आ गया। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? हमें ये चैप्टर में सीखना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव डिफरेंस, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव डिफरेंस। नाउ रिलेटिव डिफरेंस का मतलब क्या? चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। रिलेटिव डिफरेंस का मतलब क्या? चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मतलब जो प्राइस अभी बढ़ गए हैं, जो प्राइस अभी बढ़ गए हैं, पहले जो थे उसके कंपैरिजन में अभी कितना परसेंटेज चेंज आया है, वो हमें ढूंढना है। What are we supposed to find? Percentage change in the price, that is relative difference. And जो हम ये परसेंटेज चेंज फाइंड करते हैं, जो ये परसेंटेज चेंज हम फाइंड करते हैं प्राइसेस में,
the percentage change in the price, what do we find out? That is nothing, it is said to be index. उसे हम इंडेक्स कहते हैं कि ભાવમાં વધારો આવ્યો છે, ભાવ વધ્યા છે, પણ જે આપણા ભાવ વધ્યા છે એ કેટલા પરસેન્ટેજમાં વધ્યા છે એ આપણે જે ફાઇન્ડ કરીએ એને આપણે કહેશું इंडेक्स. उसे हम कहेंगे इंडेक्स. और उसका फॉर्मूला क्या है लिखो. देखो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर आई टोल्ड यू एक फॉर्मूला करने का पूरा चैप्टर आ जाएगा. दिस इज द फॉर्मूला हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज. तो दैट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड इंडेक्स which will be denoted by I. It will be denoted by I and the formula is P1 upon P0 into 100. What is the formula? P1 upon P0 into 100. मतलब हम प्राइजेस में, हम जो प्राइजेस हैं उसमें परसेंटेज चेंज हम ढूंढ रहे हैं, जिसका फॉर्मूला क्या बना? P1 अपॉन P0 इंटू 100. अब सर ये P1 क्या है? लिखो. What is P1? Write it down. P1 is prices of current year. P1 is prices of current year. P0 prices of base year. अब बेटा ये जो ईयर है उसको अपने को ध्यान से समझना है. प्राइजेस ऑफ करंट ईयर एंड प्राइजेस ऑफ बेस ईयर. राइट. तो चैप्टर की शुरुआत कहां से हुई है जरा समझो. चैप्टर की शुरुआत कहां से हुई? हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई हर एक कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है. करंट ईयर का अगर हम प्राइस किसी भी प्रीवियस ईयर के प्राइस के साथ कंपेयर करें, प्रीवियस ईयर बोले तो बेस ईयर, કોઈ પણ બેઝ યર ના પ્રાઇસ સાથે હું કમ્પેર કરું છું તો એમાં મને ચેન્જીસ જોવા મળે છે, ભાવ વધારે દેખાય છે. હવે એ જે ડિફરન્સ જે મને વધારે દેખાય છે એ ડિફરન્સ આપણે બે રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. પહેલું એબ્સોલ્યુટ ડિફરન્સ, ખાલી ન્યુમેરિકલ ડિફરન્સ આપણે જોઈ લીધું. અને બીજું છે परसेंटेज डिफरेंस. द सेकंड इज परसेंटेज डिफरेंस, जिसको हम रिलेटिव डिफरेंस बोलते हैं. और ये जो हम परसेंटेज डिफरेंस, जो रिलेटिव डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, दैट इज अवर इंडेक्स. दैट इज सेड टू बी अवर इंडेक्स. एंड उसका हमको फॉर्मूला कैसे मिलेगा? ये जो परसेंटेज चेंज हमें ढूंढना है उसका हमें फॉर्मूला कैसे मिलेगा? इट विल बी P1 अपॉन P0 into 100. What is P1? Prices of current year divided by prices of base year into 100. जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई हमने परसेंटेज डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया है. तो जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो ये डेफिनेशन को अंडरलाइन करेंगे. अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं, डेफिनेशन को अंडरलाइन करेंगे. जस्ट अ सेकेंड, आई विल फाइंड आउट वेयर इज माय इंडेक्स नंबर. जस्ट अ सेकेंड, इंडेक्स नंबर किधर है? ये रहा. मैं भी अपनी टेक्स्ट बुक खोल लेता हूं बेटा और फिर तुमको उसमें डेफिनेशन अंडरलाइन करवा लेते हैं. पेज नंबर 3 पर है. देखो पेज नंबर 3 पे द रिलेटिव चेंज बेटा मिला. द रिलेटिव चेंज, the percentage change in the value of a variable associated with any item for a given period compared to its base period is called index number. जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो ये अंडरलाइन कर लेंगे इस डेफिनेशन को, इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन को ये अंडरलाइन कर लेंगे. बराबर है. अंडरलाइन केला. परसेंटेज चेंज हमने जो ढूंढा, परसेंटेज चेंज
दैट इज अवर इंडेक्स। एंड उसका देखो नीचे फॉर्मूला भी दिया है, P1 अपॉन P0 इज कॉल्ड प्राइस रिलेटिव ऑफ दैट आइटम। P1 upon P0 is called price relative of that item. Getting it? Now, but what was the formula we saw for the index? P1 upon P0 into 100, the price of current year divided by price of base year. अब हमें चैप्टर की थियरी में ऐसा बोला है कि तुम जब बेस ईयर किसी को सिलेक्ट कर रहे हो, थियरी में ऐसा बोला है, हमको थियरी में ऐसा बोला है कि जब भी आप बेस ईयर सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब हम इसमें कर क्या रहे हैं, कंपैरिजन। हम क्या कर रहे हैं यहां पर, कंपैरिजन कर रहे हैं ना, कि आज के भाव हम कंपेयर कर रहे हैं कोई प्रीवियस ईयर के प्राइस के साथ, कंपेरिजन આપણે કરી રહ્યા છીએ, બરાબર છે। હવે તમે મને એક વસ્તુ એવું કહો કે તમારા ઘરે પણ જો તમારું कंपैरिजन થતું હશે, તમારા पेरेंट्स તમને જોઈને કહેતા હશે ને કે બાજુવાલી को देख कितना पढ़ रही है, कितने मार्क्स लेके आ रही है ने, तू नालायक देख पढ़ता ही नहीं है। तो अपने पापा मम्मी को जवाब देना पड़ता है कि वो बाजू वाली को देखने की वजह से ही तो मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मेरा ध्यान उसी पर है, पढ़ाई में है नहीं तो कैसे मेरे मार्क्स आएंगे, है ना। लेकिन हमको ऐसा बोलते रहते हैं हमारे घर वाले कि तुम इसको देखो, इसका बेटा पांडे जी का बेटा तो ये बन गया, कुलकर्णी का बेटा ये बन गया, पटेल के ये हो गए। हमारा कंपैरिजन ही होता रहता है, किसके साथ, जो हमसे बेहतर है उनके साथ हमारा कंपैरिजन होता है। कभी हमारे पेरेंट्स ये नहीं बोलेंगे कि अगर पड़ोस वाला बच्चा फेल हुआ है तो उसके साथ हमारा कंपैरिजन करेंगे कि वाह मेरा बेटा तू तो कितना अच्छा है, बाजू वाले को देखो तो फेल होता है, तू तो एटलीस्ट पास तो हो रहा है, तुझे एटलीस्ट मास प्रमोशन तो मिल रहा है। कितनी खुशी की बात है ना सर, मास प्रमोशन खा के तो जो मजा आया है जीवन में, हा, ऐसा खाया डकार भी नहीं लिया है हमने, ऐसा खा लिया है मास प्रमोशन को। तो हमारा कंपैरिजन हमेशा किसके साथ होता है, द वन हु आर बेटर देन अस। तो यहां पर भी करंट ईयर के प्राइस को किसके साथ कंपेयर करेंगे, पिछले ईयर के प्राइसेस के साथ जो बेटर हो, जो साल एकदम मस्त हो, जिस ईयर में कोई भी प्रॉब्लम ना आई हो, कोई नेचुरल कैलामिटीज ना हुई हो, कोई पॉलिटिकल डिस्टरबेंस ना हुआ हो, फ्लड ना आया हो, भूकंप ना आया हो। और ऐसा अपने देश में ऐसा कोई भी ईयर नहीं है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है अपने देश में। मजे की बात है सर, ये मजा आता है मेरे को इस देश में रहने का, क्योंकि कुछ ना कुछ हर साल हमको चलता ही रहता है। तो टेक्स्ट बुक में थियरी में ऐसा बोला है बेटा, टेक्स्ट बुक में थियरी में એવું કીધું છે કે પાછલા બેસ્ટ વર્ષ સાથે તમારે कंपेयर કરવાનું। व्हाट यू आर सपोज टू डू, पिछले बेस्ट ईयर्स के साथ तुम्हें कंपेयर करने का करंट ईयर के प्राइस को। अब पिछले बेस्ट ईयर्स जो हैं वो सारे इंडिया में तो खराब ही हैं, तो इट इज जस्ट अ थियरिटिकल थिंग। हम जब सम्स करेंगे उसमें वो लोग क्लियरली मेंशन कर देंगे कि किस ईयर को बेस ईयर लेना है, हमको उसमें मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी कि मारे कोनी साथे कंपेयर करवानुं छे, ए लोको समમાં मेंशन કરી દેશે। પણ થિયરી શું કહે છે, હવે मैं जो 2021 ના प्राइस 2015 સાથે कंपेयर કર્યા, you can compare with 2016 also, 17 also, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें किसी को भी अपना बेस ईयर बनाना हो वो तुम पर है। लेकिन टेक्स्ट बुक की थियरी क्या बोलती है कि अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो पिछले अच्छे सालों के साथ ईयर के साथ कंपेयर करने का, उसी को बेस ईयर लेने का, बराबर है। तो बेस ईयर मतलब सम प्रीवियस ईयर विच इज बेस्ट, जबरदस्त ईयर है, ऐसा थियरी में बोलते हैं। अब बेस ईयर को जो हमें सिलेक्ट करना है, बेस ईयर को सिलेक्ट करना है, ये भी अपनी नोटबुक में लिखो, मेथड of selecting base year, method of selecting base year। तो वहां पर दो मेथड है, फर्स्ट फिक्स्ड
based method. Second, chain based method. मतलब बेस ईयर को सिलेक्ट करने के लिए अपने पास दो मेथड है. फर्स्ट इज द फिक्स्ड बेस मेथड and the second is a chain based method. We have fixed base method and we have chain based method. बेटा हूं આગળ કરાવું એની પહેલા few 11th standard students have joined my meeting. They just don't see which ID to be followed. अंधाधुन जे आईडी आयु नाक ज्वाइन था मीटिंग में, वीडियो बंद करके प्रेजेंट बैठे हैं पिछले 15 मिनट से. उन गधों को ये भी नहीं पता चल रहा है कि 11th का सेक्शन नहीं है, 12th का मैं पढ़ा रहा हूं. और तुम बेटा रैंचो नहीं हो, रैंचो कि जहां पर भी ज्ञान बढ़ रहा है लपेटते रहो. बेटा आई रिक्वेस्ट, मेरी मीटिंग छोड़ के 11th के मीटिंग में जाओ, आईडी देखो, पासवर्ड देखो. और 11th वाले ही ऐसे नहीं, तुम 12th वाले भी ऐसे ही हो. कोई भी मीटिंग में धप देके बिना देके घुस, साला अटेंडेंस मार्क करवा निकल, फिर पढ़ाई तो होती रहेगी सर. हाँ, अब देखो कुछ जनता निकल गई, बढ़िया है. नहीं तो इंडिविजुअल भी नाम लेके उनके कपड़े उतारने पड़ते, बेइज्जती करनी पड़ती. निकल गए वो लोग, चलो खुद से. तो तुम भी ध्यान रखना, कभी तुम मेरे 11th के सेशन में आ जाओ ने तुमको नया नया लगे तो ये मत समझना कि मैंने नया चैप्टर शुरू कर दिया है. तुम गलत मीटिंग में घुस गए हो. तुम्हें तो ये भी नहीं पता चलेगा. 12th वालों, अभी 11th वालों को तो थोड़ा भी है, तुमको तो 12th वालों को तो ये भी नहीं समझ में आएगा हो क्या रहा है. सो किधर थे हम? बेस ईयर को सिलेक्ट करने के हमारे दो मेथड हैं. कौन से दो मेथड हैं? फिक्स्ड बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड, राइट. अब इस पर हम सीधा सम स्टार्ट करते हैं. ये मेथड पर हम सीधा सम स्टार्ट करते हैं. तो जैसे ही सम स्टार्ट करूंगा ना, तुमको ये दोनों मेथड दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी. ठीक है, थियरी नहीं समझा रहा हूं. थियरी करके क्या फर्क पड़ेगा, सीधा सम करेंगे ना तो कंसेप्ट एकदम मगज में ड्रिल थई जैसे. चालू करिए, चलो. पहलो सम, इलस्ट्रेशन 1. Those who don't have the textbook, no problem. I am sharing the screen. You start the sum. The data about the wholesale prices of the wheat in a region are as follows. Now, clearly लिखा है, underline करो. Take the year 2005 as my base year. हमें 2005 को हमारा बेस ईयर लेना है. मतलब ये अपना बेस्ट ईयर है. इसके साथ हम सब ईयर को कंपेयर करेंगे. नाउ प्रिपेयर an index number for the price of the item for the remaining years. State the percentage increase in the price of the wheat for the year 2013 from these index number. अब देखो 2005 को हमको बेस ईयर लेने के लिए बोला है. इधर समझो, इधर समझो. ऐसा बोला नहीं है चेन बेस लो के फिक्स्ड बेस लो. कुछ बोला नहीं है तो वी हैव टू टेक फिक्स्ड बेस. वी हैव टू टेक फिक्स्ड बेस. तो वहां पर ऐसा पहले टेबल बना लो. चलो मेरे साथ. ईयर, देन प्राइस पर क्विंटल एंड इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100. ऐसा प्राइस एंड इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बना लो. चलो, ईयर एंड एवरीथिंग, कम ऑन, स्टार्ट.
But are you ready with the sum? Are you ready with the sum? Are you ready with calculators? Are you ready with calculators? Now, see the first one. Come on. See the first one. 2005. Can I say what is the price of current year? Can I say it is 1650? P1. Price of current year. Can I say उसी को बेस ईयर लेने के लिए बोला है? तो 1650 डिवाइड बाय 1650 इंटू 100, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 100. पहले का मेरा आंसर क्या आएगा? 100. व्हाट्स द फॉर्मूला? P1 अपॉन P0 इंटू 100. तो मेरे करंट ईयर का प्राइस भी 1650 है और उसी ईयर को मेरे को बेस लेने के लिए बोले हैं. इंटू 100 करूंगा तो मेरा पहला आंसर 100 आवेगा. दूसरे ईयर में जाते हैं, 2006 में जाते हैं. उसमें अपना है प्राइस 1690, प्राइस ऑफ द करंट ईयर, डिवाइड बाय 1650 into 100, and that will give me the answer. Yes, Krutat Pandey, any doubt? सर ये पहले वाले में आप लाइक जो था अपना 2005 उसका अपने बेस ईयर है वो तो करेक्ट है, बट वो करंट ईयर कैसे हुआ? तो अगर मेरे पास वो उस ईयर का अगर मुझे इंडेक्स ढूंढना है, इफ आई नीड टू फाइंड आउट इंडेक्स फॉर द ईयर 2005, तो उसी करंट ईयर का भी प्राइस वही है और सब में उसी को बेस ईयर लेने के लिए बोला है, तो मैं उसी को दोनों को वही ले लूंगा ना. दैट इज हाउ आई विल गेट 100. ओके. अब देख 2006 में मैंने क्या लिया? व्हाट इज द प्राइस ऑफ करंट ईयर? 1690. 1690, because that is current year. I am in the year 2006 and they have told me to take 2005 as my base year, so I took take 1650 as my P0. ओके सर. तो आंसर मेरा आ रहा है 102.4. आंसर आ रहा है मेरा 102.4. एवरीबॉडी गेटिंग इट? देन थर्ड, the current year price is 1730. Current year price is 1730 divided by 1650 divide by 1650 into 100. So that will give me how much? 1730 divided by 1650. 104.84. 104.84. Then 2008. Again, can I say that's the price of my current year? So 1750 divide by 1650 into 100. So that will give me 1750 divided by 1650 into 100. 106.06. 106.06. बेटा अगर तुम ध्यान लगा रहे हो तो देखो हर एक ईयर में अपना बेस फिक्स्ड है. फिक्स्ड है, देखो फिक्स्ड है. इन ईच एंड एवरी ईयर माई P0 इज फिक्स्ड. देखो पहले में भी 1650 था P0, इसमें भी 1650 है, इसमें भी 1650 है, इसमें भी 1650 है. इट इज फिक्स्ड. आर यू गेटिंग इट? अब 2009 में जो आएंगे, 2009 में जो आएंगे, सो 1810 डिवाइड बाय 1650 into 100. But give me the answer. 1810 divide by 1650. That comes to 109.69. 109.69. But I am waiting. बेटा यहां समझो ना. 10, 11, 12, 13 के आंसर मुझे दो. मैसेज करो एक साथ. एक एक मैसेज ना ठोकता. બે હમણાં કીધું એક એક કરીને મેસેજ ના ઠોકતા. 4 વર્ષનું એક સાથે મને આન્સર આપો. ચલો કરી લો પહેલા. હું નહીં કરું.
हूं नहीं करो, दिस इज वेरी इजी एंड आई फील इंसल्टेड यार, क्या આવું इजी थोड़ी ना करवानो है, हम कई टफ वस्तु आवे तो करवानी मजा आवे। सर हमारी माटे आ पण टफ છે, जरा કરી આપો प्लीज। I want answer for all the 4 years, come on, I want answer for all the 4 years। ओ बाप रे, बड़े दिनों के बाद देव पटेल दिखा है मीटिंग में, माय गॉड आई एम सो हैप्पी टुडे, देव पटेल इज बैक। ऐसे कितने महीनों के बाद ऐसे मिलते रहने का यार मजा आता है। तेरे को भी देखने की मेरी दाढ़ी कितनी बढ़ गई, मैं भी तेरी दाढ़ी देखूंगा कितनी बढ़ी है। चलो बड़ा जनता जवाब दे रही है, थैंक यू है, नहीं तो मैं ऐसा बोलने वाला था जनता जवाब मांग रही है। जनता जवाब दे रही है, बहुत बढ़िया। तो मैं भी आंसर लिखना शुरू कर देता हूं, तुम जरा चेक करो कि क्या तुम्हारे और मेरे आंसर सेम हैं। नेक्स्ट वाले का देखो क्या आएगा, नेक्स्ट वाले का 1850 डिवाइड बाय 1650 into 100, that will be 112.12, right? Then 1870 divide by 1650 into 100, that will be 113.33. Then 1900 divide by 1650 into 100, 115.15, and 1950 divide by 1650 into 100, that comes to 118.18. 118.18 ऐसे आंसर आने चाहिए आपके बेटा, ऐसे आपके आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो इस मेथड का नाम क्या था, फिक्स्ड बेस। तो देखो हर एक में बेस फिक्स्ड है, हर एक में देखो अपना बेस फिक्स्ड है। इसलिए बेटा अपने को सलमान खान का गाना याद करने का, बेबी को कौन सा बेस चाहिए, फिक्स्ड बेस। तो देखो सब में बेस फिक्स कर दिया है। आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट। इसीलिए इस मेथड का नाम पड़ा है फिक्स्ड बेस मेथड। हम जो अल्लाह टल्ला करी ने नाम नहीं पाड़ियो, there is logic and a reason behind it कि why the name is fixed, because the base in each and every year remains fixed। मतलब each and every year has been compared with 2005, that's fixed, હું એને બદલવાનો નથી, એટલે આ મેથડ નું નામ છે ફિક્સ્ડ બેઝ મેથડ। હવે સર 2005 કેમ લીધા, સમમાં કીધું તું, अगर 2007 कीधु होत तो we would have taken 2007। जो भी सम में बेस लेने के लिए बोलेंगे हम वो ले लेंगे, ठीक है। सम में एक और चीज पूछी है, सम में एक और चीज पूछी है, जरा ध्यान लगाओ, जरा ध्यान लगाओ। सम में एक और चीज पूछी है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द व्हीट इन द ईयर 2013। अब देखो 2005 में जब अपना बेस ईयर था तब इंडेक्स कितना था 100, અને 2013 માં 100 થી इंडेक्स કેટલો થઈ ગયો 118.18। 100 से वो इंडेक्स बढ़ के 118 हो गया है। सो नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे, since the index number in the year 2013 is 118.18, 118.18, the prices have increased
द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड। अब देखो मेरे को आंसर कैसे मिलेगा जरा समझो, हमको बोला है परसेंटेज में कितना बढ़ावा हुआ, परसेंटेज। द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 18, the prices have increased by 18.18%. The prices have increased by 18.18%. सर ये कैसे आया, कैसे आया? उसका नीचे फॉर्मूला लिख लो, चलो नीचे फॉर्मूला लिख दो। मेरा करंट ईयर का प्राइस 118.18 था और बेस ईयर का प्राइस 100 था, तो वो मैंने माइनस किया तो 18.18 बचा, तो वो मैंने परसेंटेज में ले लिया। हमारे करंट ईयर के प्राइस को 2013 के प्राइस को हमने बेस ईयर के साथ कंपेयर किया, जो भी डिफरेंस आया दैट इज माय परसेंटेज इंक्रीज। जे पण डिफरेंस आयु दैट्स माय परसेंटेज इंक्रीज। एनी डाउट? एनी डाउट? तो ये जो बेस ईयर सिलेक्शन करने की मेथड है इसको क्या कहेंगे हम? फिक्स्ड बेस मेथड। चेन बेस में क्या करेंगे? लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। लेट्स डू अ सम ऑन चेन बेस। फिक्स्ड तुमने समझ लिया क्या करने का, फिक्स्ड। चेन में देखो क्या करना है वो हम देखते हैं, અને પછી એક સમ કરીએ કે જેમાં બંને આવે, એટલે આપણું ફૂલ રિવિઝન થઈ જાય। ઇલસ્ટ્રેશન 4 ઉઠાવો, ઇલસ્ટ્રેશન 4 ઉઠાવો। The data about the bi-monthly closing prices of the shares of the company in the year 2014 are given. Compute chain base index number. अब देखो हो फिक्स्ड बेस या तो चेन बेस, अपना फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, इंडेक्स का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 upon P0 into 100. Beta, draw the table, write the sum, and we do the sum then together. साथे आपने सम करिए, चलो। Okay, now, but I'll share the screen again, but let me explain. Chain based method. अच्छा, कितने लोगों ने चेन देखी है? चेन, how many of you have seen a chain? चेन कौन मुझे समझा पाएगा, डिस्क्रिप्शन दे पाएगा? चेन का डिस्क्रिप्शन कौन मुझे दे पाएगा? नुपुर, नुपुर, नुपुर। चेन। હેલો સર, अनुपुर, સર એટલે ચેન એટલે કોઈ આમ ચેન એટલે ચેન, મેં એટલે તો પૂછ્યું ચેન કેટલા લોકોએ જોઈ છે કે વોટ ઇઝ એટલે ચેન? સર અત્યારે સાંભળવામાં આવ્યું છે એટલે કે કોરોના વાયરસની ચેન તોડવા માટે જે કર્યું એ ચેન बेटा आई एम आस्किंग कितने लोगों ने चेन देखी है? चेन જોઈ તો છે સર, तो ये समझाओ, हाउ डज अ चेन लुक लाइक? જેવી હોય તેવી દેખાય। नित्या, 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 हाँ सर, चेन कनेक्टेड हो एक बीजाथी। चेन शू है? कनेक्टेड हो ना एक एक वस्तु थी। यस, दिस इज द आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग। चेन, बेटा अगर तुमने चेन देखी हो तो उसका कुछ इस तरह से होता है। बेटा मेरे ड्राइंग्स पे मत जाना, कंसेप्ट को समझना। कहना से अगर मैं चेन ड्रॉ करूं तो उसके ये एक हुक दूसरे हुक के साथ कनेक्टेड होते हैं, मतलब द नीचे वाला हुक इज कनेक्टेड विद द अपर हुक। अरे बोलो ना यार,
सर हमने चेन बहुत बार यूज करी है लोगों को मारने के लिए। मेरी वाली को छेड़ा कैसे तूने? उसमें आपने बहुत मारा है लोगों को चेन से, हमने बहुत मारा है। गले में भी तुम चेन पहनते हो ना, तो तुम यू डोंट सी कि वन ब्लॉक इज कनेक्टेड विद द अदर ब्लॉक। एक वाड़ो नीचे वाला साथे कनेक्टेड छे, नीचे नीचे वाला साथे कनेक्टेड छे। तो आ चेन बेઝ મેથડમાં પણ નામ એટલે જ આ રીતે પડ્યું છે કે આપણે આમાં કરવાનું શું છે, આમાં આપણે કરવાનું શું છે કે this year 22 વાળો જે છે, જે જાન્યુઆરી નો પ્રાઇસ છે, એને મારે એના ઉપરવાળા પ્રાઇસ સાથે કન્સિડર કરવાનું, પછી માર્ચ વાળાને જાન્યુઆરી સાથે કન્સિડર કરવાનું, મે વાળાને માર્ચ વાળા સાથે કમ્પેર કરવાનું, जुलाई વાળાને મે સાથે કમ્પેર કરવાનું, सितंबर વાળાને जुलाई સાથે कंपेयर करवानू, नवंबर वाले को सितंबर वाले के साथ कंपेयर करने का। ऑपोजिट ऑफ फिक्स्ड बेस। फिक्स्ड बेस में क्या होता था? फिक्स्ड बेस में जनवरी आप्યું છે ને, તો फेब्रुआरी પણ जनवरी સાથે कंपेयर करवानू, मार्च પણ जनवरी સાથે कंपेयर करवानू, एप्रिल પણ जनवरी સાથે। એવું फिक्स्ड बेस में। चेन बेस में क्या हो रहा है देखो जरा। चेन बेस में जनवरी के प्राइस का कंपेयर हम उसके पहले वाले प्राइस के साथ करेंगे, मार्च का कंपेयर उसके पहले वाले प्राइस से, मई का पहले वाले, जून का उसके पहले वाले। तो जो ऊपर वाले चेन कनेक्टेड है उनसे हम उसका प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं। એટલે એક બે મને કરી લેવા દો, પછી તમે કોપી કરજો, હમણાં ના કરતા। મને સમ કરી લેવા દો। Can I say जनवरी के प्राइस है 22, that's the price of current year, डिवाइड बाय जनवरी का पहले वाला कोई प्राइस नहीं दिया है, तो वो भी मैं 22 ही मान के चलूंगा क्योंकि मेरे को कुछ प्राइस नहीं दिया है। तो इट वुड बी सेम इनटू 100 अगर मैं करूंगा तो पहला आंसर मेरा 100 आएगा। ठीक है। अब जब हम मार्च में गए तो 21.2, मार्च के ऊपर वाला कौन सा है? जनवरी, उसका भाव है 22 रुपया, इंटू 100 कर देंगे हम। सो कितना आएगा जरा चेक करते हैं। 21.2 डिवाइड बाय 22 इंटू 100, 21.2 डिवाइड बाय 22 इंटू 100, 96.36, 96.36। अब हम जब मई में गए, मई, तो मई की क्या प्राइस है? 22 डिवाइड बाय उसके ऊपर वाला कौन सा है? 21.2 इंटू 100। बेटा समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? चेन बेस में समझ में आ रहा है? 22 डिवाइड बाय 21.2 इंटू 100, तो 103.77, 103.77, 103.77। रुद्री अनम्यूट बेटा, रुद्री अनम्यूट। यस सर। रुद्री व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? नो सर, वो बीच में कनेक्शन लूज हो गया था ना, पर आपने फिर रिपीट कर दिया। समझ में आ गया चेन बेस में क्या करना है? यस सर। ओके, लेट्स गो फर्दर, लेट्स गो फर्दर। नाउ वी सी जुलाई, उसका भाव है करंट ईयर का, जुलाई का करंट ईयर का भाव है 23, उसको मैं डिवाइड करूंगा उसके ऊपर वाले भाव के साथ जो मई का था, इंटू 100। सो 23 डिवाइड बाय 22, 23 divided by 22 into 100, that comes to 104, 104.54. Then comes September, 24.7 divided by 23 into 100. So 24.7 divided by 23 into 100, that comes to 107.39. And the last 26 divided by 24.7 into 100,
That comes to 26 divided by 24.7. 105.26. That's my final answer. Chain base. The current year price will be immediately compared with the previous वाले प्राइस के साथ सीधा कंपेयर होगा, तो वो चेन बेस मेथड बन जाएगा। बेटा दोनों सम को जरा ध्यान से देखो, डिफरेंस कुछ समझ में आ रहा है? दोनों सम जो अभी हमने किए वो दोनों को देखो ना यार, मुझे मत देखो, दोनों को देखो। तो ऋषि ने बेटा एक मस्त मैसेज अभी मेरे को भेजा, सर चेन बेस मेथड बोले तो द बेस विल कीप ऑन चेंजिंग। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। चेन कैसा है, नीचे वाला हुक ऊपर वाले से कनेक्टेड है, तो हम जितना आगे जाते जाएंगे वो हुक चेंज होते जाएंगे, तो इट इज चेंजिंग बेस। श्योर। अच्छा, कैन वी गो ऑन अ सम जिसमें फिक्स्ड भी है, चेन भी है और एक नया कंसेप्ट है, लेकिन वो भी इजी है, हो पाएगा? दैट्स द लास्ट सम फॉर टुडे। करें के थाक लाग्यो सर, जब्बर थाक लाग्यो। अच्छा, व्हाट वी डू, लेट्स स्टार्ट। जो नया पॉइंट है ऐसा होगा तो वो बाद में कर लेंगे, लेकिन चेन फिक्स वाला कर लेते हैं अपने। चेन मेथड और फिक्स बेस मेथड वाला कर लेते हैं, ताकि जनता को एक ही दिन में इतनी सारी गोलियां ना खानी पड़े। चलो शुरू करते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 1.1 का सम नंबर 1। अभी हमने इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 4 कर लिया है। दिस इज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। 1.1 question number 1. Let's start reading the sum. The data about the daily wage of a group of the workers employed in a factory in a city during the year 2008 to 15 are as follows. Find the index number by fixed base keeping 2008 as our base year. Second, chain base method से जाना है। अब ये नया पॉइंट है बेटा, this is the new point. We have to keep a fixed base method taking average of 2011 to 2013. हमको एवरेज लेके करना है, तो वो टाइम रहेगा तो सीखेंगे, नहीं तो नहीं। ऐसा टेबल बना लो, चलो ईयर then average daily wage, fixed base year with the base 2008 as our base year 2008, जिसमें वापस मेरा फॉर्मूला तो वही लगेगा, P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। चेन बेस भी करने के लिए बोले हैं तो वो तो कर देंगे हम, नॉट अ प्रॉब्लम, चेन बेस भी हम कर देंगे। तो उसके लिए भी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन उसमें प्राइस इमीडिएटली जो प्रीसीडिंग वाला है वो हम ले लेंगे, और थर्ड वाला जो टेबल है वो देखते हैं, टाइम रहेगा तो बनाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में। जय माता दी। बेटा इस तरह से 3 कॉलम के टेबल बना लो, ईयर, देन डेली वेज, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर विद द बेस ईयर ऑफ 2008, चेन बेस, एंड थर्ड वाला बना के रखो, बाद में अपने करेंगे। But can I start the sum? Give me a thumbs up if you are ready with the table. Give me thumbs up if you are ready with the table.
वेरी फ्यू, दैट्स गुड। कम लोगों ने ही सम करने हैं सर, बाकी के तो अटेंडेंस पूरा आया जी सर, अटेंडेंस। हेलो, चालू करिए। फिक्स्ड बेस बेटा अभी तुमने सीखा, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100, लेकिन पहले वाले में कैसा होगा बेटा? पहले वाले में 275 है मेरा करंट ईयर, 275 है मेरा प्रीवियस ईयर का भी वही, क्योंकि उसी को बेस लेना है। तो देखो इंडेक्स 100 आएगा। तो ये बात बेटा मैं तुम्हें आगे जाके ये नोट भी लिखवा दूंगा कि बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 होगा। ये आगे हम एक नोट भी लिख लेंगे। एंड दिस इज द रीजन, दिस इज द लॉजिक, because the current year price is also same, the base year also they are asking us to keep us the same, so always the index of the base year will be 100. Next, 284 divided by 275 into 100, तो वो हम गिन लेते हैं कितना आएगा। चलो चलो चलो, मैं भी कैलकुलेटर उठाता हूं, तुम भी अपना कैलकुलेटर उठा लो। 103.27, then 289 divided by 275 into 100, 289 divided by 275, 105.09, then 293 divided by 275, देख रहे हो बेटा बेस फिक्स्ड है, the base is remaining fixed, 293 divided by 275 into 100, so 106.54, then 297 divided by 275 into 100, 297 divided by 275, 108, 313 divided by 275, 313 divided by 275 into 100, that comes to 113.81. जनता हो रहा है जनता? देखो इंडेक्स हर साल, देखो इंडेक्स बढ़ता ही जा रहा है, अपवर्ड ट्रेंड। सर टाइम सीरीज भेगू ना करो, हाँ आ वीकेंड पर हमें टेस्ट લખવાના છીએ અને એના પેપર આપણે ક્લાસ પર આવીને સબમિટ કરવાના છે. વી ગોના ચેક ધેટ. એટલે સર મારે એક્ઝામ આપવી પડશે, તમે એવું કહો છો? यस बेटा। ओके 345 पे मैं आ गया हूं, लास्ट वाले पे। डिवाइड बाय 275 into 100, that comes to 125.45, 125.45। बेटा फिक्स्ड मैंने खत्म कर दिया, तुम किधर हो? सर फॉर्मेट पे, हम फॉर्मेट पे हैं। अच्छा कैलकुलेटर लेके बैठे हो के? जो पप्पा लिखवा रहे हैं लिखते जाओ। हाँ शाबाश बेटा, लोगों ने दिल पे ले लिया, कैलकुलेटर दिखाने लगे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। जब मैं पूछूं तब बताया करो, होशियारी मत मारो, होशियारी मत मारो, बोला है तुमको दिखाने के लिए कैलकुलेटर। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि कौन खुद से कर रहा है या कौन देख दुख के। हेलो चेन बेस उपाड़िए बेटा, चलो चेन बेस उपाड़िए। कहना से चेन बेस में क्या था, करंट ईयर के प्राइस को इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन वो तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो सेम ही रहेंगे। तो 275 डिवाइड बाय 275, देन 284 के इमीडिएटली प्रीसीडिंग कौन सा ईयर है, 275 इंटू 100। देखो ये मैं बिना कैलकुलेटर के कर सकता हूं, देखो 103.27। तुम भी क्या याद रखोगे, बिना कैलकुलेटर के कर दिया। 284 के बाद इमीडिएटली 275 था, अब देखो 289 उसके इमीडिएटली 284 है, इंटू 100,
So 289 divided by 284, 101.76. Then 293 divided by उसके immediate 289 है, 293 divided by 289. बेटा chain base. तो 101.38. Then 297 के ऊपर क्या है immediately 293, 297 उसके immediately ऊपर है 293 into 100, तो 101.36, 101.36. ओके, फिर नेक्स्ट है 313 डिवाइड बाय 296. 313 के इमीडिएट के पीछे है 297 into 100. So 313 divided by 297, 105.38. પછી 328 divided by immediately 313, 328 divided by 313 into 100, 328 divided by 313, 104.79, 104.79, and the last 345. Sir, time to go. 345. 345 divided by 328 into 100. That will give me 345 divided by 328. That will give me 105.18. 105.18. बेटा तीसरा वाला जो नया है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नॉट टुडे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. आज के दिन के लिए फिर बहुत भारी हो जाएगा तुम लोगों के लिए. चेन बेस, फिक्स बेस इतना पता चल रहा है? फिक्स बेस, चेन बेस इतना पता चल रहा है? पक्का? गिव मी थम्स अप. क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार? मतलब मेरे को डायलॉग मारना पड़ेगा यार. इतने सारे थम्स अप आ गए, मेरे को डायलॉग मारना पड़ेगा क्या? ऑनलाइन भी क्या पढ़ाने लगा हूं यार आजकल मैं तो.